Hi everyone. Have you ever went to a restaurant and after ordering food you realize that you ordered food in excess? But now, to do justice to the food, you should be able to finish it, even if your stomach is about to get burst. By doing so, somehow you will derive this feeling that you ended up saving food from getting wasted. Or have you ever purchased a ticket to watch a movie and while watching the movie you realize that this movie is not worth the watch? But to justify the price you paid for the ticket, you chose to sit till the end. The aforementioned conundrums arise due to a fallacy which is deeply entrenched in us. The fallacy is known as sunk cost fallacy. Sunk cost fallacy means whenever we invest our money, time or efforts into doing something, we wish to continue doing it. Even if continuing it is bringing no more value. और even if continuing it is proving to be detrimental to our cause. मूवी देखने का प्राइम पर्पस क्या होता है? So that we have a good time. बट अगर मुझे पहले 10-15 मिनट में पता चल गया है कि this movie is not worth the watch and I won't be having any good time, then what's the point of sitting till the end? बट हमें ये लगता है कि अगर हम एंड तक मूवी नहीं देखेंगे तो हमने जो पैसे पे करे हैं उस मूवी के लिए वो वेस्ट हो जाएंगे. हम लोग ये भूल जाते हैं पैसे ऑलरेडी वेस्ट हो चुके थे. नाउ वी आर नॉट सेविंग मनी. इनफैक्ट वी शुड सेव टाइम नाउ. हमें कुछ और काम कर देना चाहिए, वो मूवी बीच में छोड़ के जानी चाहिए. खाने में भी हमारे साथ यही होता है. अगर मैं खाना खा रहा हूँ और खाना बच जाता है तो इट बिकम्स अ ड्यूटी हम पूरा खाना खत्म करें. हमें ऐसा लगता है हमें पूरा खाना खत्म करना होगा क्योंकि अदरवाइज खाना वेस्ट हो जाएगा. भले ही मुझे इनडाइजेशन हो जाए बट मुझे पूरा खाना खाना है. हमारी बॉडी की सर्टेन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स होती है. उसके बाद बॉडी न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब नहीं करती है और वो बिना डाइजेस्ट हुए बॉडी पास ऑन कर देती है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ऑल्दो फैट्स जरूर स्टोर होते हैं बट स्टिल फिर हम उन फैट्स को बर्न करने के लिए जिम करते हैं और हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है. वी डोंट अंडरस्टैंड कि वो खाना ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है. अब हम उसको वेस्ट होने से नहीं बचा सकते हैं बल्कि हमारा बॉडी का भी नुकसान होगा और खाना भी वेस्ट होगा. Whenever it comes to relationships and primarily marriages, we are expected to remain in that relationship till the death set us apart. If we choose not to continue with our partner, then it is branded as a failed relationship. मतलब अगर रिलेशनशिप एंड तक नहीं चल रही है तो वो फेल है, इररिस्पेक्टिव हमारे कितने अच्छे पल साथ गए हों, वो कितनी भी अच्छी रिलेशनशिप अभी तक रही हो. बट अगर वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, अगर वो लास्ट तक नहीं रह रही तो रिलेशनशिप फेल है. We all are cognizant of the very fact that we humans are easily susceptible to mistakes. We commit mistakes in our day-to-day lives, but we make sure that those mistakes are rectified. However, whenever it comes to relationships, we tend to decipher our judgment of being entering into a relationship beyond the purview of correction. हम लोग ये सेंटेंस ये फ्रेज अक्सर यूज करते रहते हैं कि इंसान से ही गलती होती है तो क्या हो गया अगर ये गलती होगी तो. बट हम लोग ये सेंटेंस जब भूल जाते हैं जब when it comes to relationships or marriages. हम भूल जाते हैं we could be mistaken in choosing our life partners. हमें लगता है ये गलती सुधारी नहीं जा सकती. No matter my partner is driving me crazy, no matter my relationship is getting toxic, I have to continue with this relationship. I am obliged to continue this relationship. Otherwise, I will be frowned upon. Indian divorce rates are one of the biggest example of this particular stigma. In India, less than 1% people file for divorces, as compared to Luxembourg, where approximately 87% people file for the divorces. We Indian take pride in this particular statistics. हम लोग ये बोलते हैं कि हमारी इंडिया में रिलेशनशिप कितनी सक्सेसफुल होती है, मैरिजेस कितनी सक्सेसफुल होती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज जहां पे मैरिजेस बिल्कुल फेल है. ऑलमोस्ट हर बंदा 2 या 3 डिवोर्स देके बैठा होता है. वी टेक प्राइड इन दिस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स. हाउएवर, लुक्सेमबर्ग एंड यूएस, वेयर द डिवोर्स रेट्स आर द हाईएस्ट, देयर परफॉर्मेंस इन हैप्पीनेस इंडेक्स इज वे बेटर देन दैट ऑफ इंडिया. Or if you talk about Kerala, which has the highest literacy rate as compared to any other state in India, it comes in the top 2 position when it comes to divorce rates. इसका मतलब जहां पे लोग ज्यादा हैप्पी हैं, जहां पे सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, वहां पे लोग ज्यादा डिवोर्स दे रहे हैं एज कंपेयर टू एनी अदर प्लेस. सो बिकॉज पीपल डोंट सकम टू द सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर. उन्हें पता है कि वो दोज पीपल आर ह्यूमंस एंड दे कमिट मिस्टेक्स एंड दे मेक श्योर दैट दोज मिस्टेक्स आर रेक्टिफाइड. व्हेन वी आर विक्टिम टू दिस फैलेसी, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा मनी वेस्ट हो रहा है, हमारा एफर्ट वेस्ट हो रहे हैं, तब भी हम उस टास्क को कंटिन्यू कर रहे हैं. लाइक लुक एट द एग्जांपल ऑफ फार्मविल. लाइक अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन पीपल प्लेड दैट गेम एट वंस. क्या उस गेम में मजा आता है? Do we get adrenaline rush? Do we get dopamine rush? No, we don't get anything. But still we play that game. It's because of this particular fallacy that I talked about. हाँ, क्योंकि हमने उसमें टाइम इन्वेस्ट किया है शुरुआत में और हमें दिखता है कि हमने रिसोर्सेज कलेक्ट करे हैं, भले ही वो वर्चुअल हो. बट तब इसीलिए हम लोग उस गेम को कंटिन्यू करना चाहते हैं. वो बहुत एग्जॉस्टिंग है, हम लोग बोर हो जाते हैं, बट तब भी हम लोग उसे खेलते रहते हैं. Look at all other games. Now there is a concept of virtual money, that you are gaining money. People will watch ads to gain that specific money. वो घंटों तक ads देखेंगे जिससे वो पैसे कमाएं. Because they have invested their time in that particular game, now they want to continue gaining those resources. No matter their time is getting wasted, no matter their efforts are getting wasted, but they will still watch those ads or they will still play that game till the end, even if they are not deriving any value or they are not deriving any pleasure. We also become victim to this fallacy when we go for a tour. We go for traveling. Like for example, I'm visiting a city
मैं अगर वहां पे अपने पैसे खर्च करके जा रहा हूँ, टाइम खर्च करके जा रहा हूँ, मुझे लगेगा मैं वहां की सारी प्लेसेस विजिट कर लूँ, इवन तो मेरा मन नहीं कर रहा है, बट हमें क्या लगता है अगर हमारे पास एक दिन है, मैं भले ही मजे ना करूँ, बट मुझे सारी प्लेसेस जाना है क्योंकि मैं पैसे खर्च करके आया हूँ यहाँ पे। मुझे मजा नहीं आएगा क्योंकि बहुत लोग होते हैं यार मुझे नहीं जाना, लिटरली उनके ग्रुप मेंबर फोर्स करते हैं भाई अगर हम लोग इतनी दूर आए, लेट्स विजिट एवरी प्लेस विच इज फेमस। इसका फायदा तो होना चाहिए, हम लोग इतनी दूर आए, मतलब हम लोग इतनी, हमने कोई चीज खरीद ली, हमने कोई चीज खरीद ली, उसका कोई यूज नहीं है, उसको यूज करके टाइम वेस्ट है, बट हमने खरीदी है तो हम लोग सब प्रेशराइज करेंगे भाई उसको यूज करो। पैसे ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं जब आपने वो चीज खरीद ली और जब आपको लगता है उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप उस चीज को यूज करने से यूटिलाइज नहीं करोगे, इवन तो वेस्ट कर सकते हो। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर अस, व्हाई डू वी फॉल विक्टिम टू दिस fallacy? There are two important reasons that I found out in my personal research and in my analysis, which are first, we want to look good. जो हमने इनिशियल डिसीजन लिया है, हम इस होप में रहते हैं कि वो डिसीजन सही हो, क्योंकि अगर हम उस डिसीजन से हट जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी नजरों में और दूसरों की नजरों में वो डिसीजन गलत हो जाएगा। इवन दो वो डिसीजन एक बड़े पिक्चर का एक स्मॉल पार्ट था और उसकी वजह से हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे और उसकी वजह से हमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे जो कि इन वेन जाएंगे, क्योंकि मेरा जो बेसिस है, जो मेरा प्रेमिसेस है, वो ही खुद ही गलत है। मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैंने गलत जगह इन्वेस्टमेंट करी है शुरुआत में ही, तो मैं कितनी भी इन्वेस्टमेंट आगे कर लूँ वो मेरे को और नुकसान देगी, क्योंकि मेरी अर्लियर इनिशियल इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन गलत है। तो अगर मैं उस डायरेक्शन में इन्वेस्ट करता रहूंगा वो ऑलरेडी गलत है, बट स्टिल हमें लगता है कि हमें लगता है अगर हमने इनिशियल डिसीजन से हटे तो हम लोग अपनी नजरों में गलत हो जाएंगे। तो वी वांट टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर hopelessness. The second reason, which is the most important one, was put forward by Daniel Kahneman. He is a famous psychologist and a Nobel Prize winner, and also the author of the book Think Fast and Slow, which I definitely recommend for a read. He said humans value more on losses, human focus more on losses rather than on gains, even if their chances of occurrence are the same. So like, we have a tendency, for example, we have a tendency to overeat. अगर हमारा पेट भर भी चुका होता है तो we feel like eating more. It's because it's biologically instilled in us. If you go 1000 years back, you never know when will be the next time you'll be eating food. For example, अभी मेरे सामने एक शिकार पड़ा है, मैं शिकार पे गया था, मैं शिकार लेकर आया, और especially the nature of the food we used to be perishable. I cannot store that food, so I have to finish it right now, otherwise वो सड़ जाएगा. So हम लोग सोचते थे हमें पता नहीं कल हमें खाना मिले या ना मिले, कल हमें शिकार मिले या ना मिले, तो अभी खा लो. तो अल्टीमेटली हम हर सिनेरियो को अनसर्टेनिटी के साथ देखने की कोशिश करते थे. हमें नहीं पता कि हम ये सोचते थे कि इट्स बेटर टू कंटिन्यू विद द टास्क दैट वी आर ऑलरेडी डूइंग रादर टू शिफ्ट ऑन सम अदर टास्क. सो एंड द लॉजिक इज स्टिल वर्किंग इन द कंटेम्पररी सोसाइटी. ऑल्दो हम लोग काफी अनसर्टेनिटी को खत्म कर चुके हैं, काफी सर्टेनिटी अपनी लाइफ में ला चुके हैं, बट तब भी हम उस लॉजिक के हिसाब से चीजें करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैरिजेस, हम लोग जब भी डिवोर्स की बात आती है, जब भी रिलेशनशिप खत्म होने की बारी आती है, हम लॉसेस पे ज्यादा फोकस करेंगे कि हम क्या लूज करेंगे. हम लोग नेगेटिव ज्यादा सोचेंगे कि फॉर एग्जाम्पल कि क्या पता जो मैं दूसरी शादी करूं वो भी इससे भी ज्यादा बेकार रही है, या मैं डिवोर्स जब मैं डिवोर्स दे दूं और मैं अकेला पड़ जाऊं वो और भी ज्यादा मेरे लिए गंदा हो. तो मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ लॉसेस पे फोकस करने की कोशिश करता हूं रादर देन व्हाट विल आई गेन. This happens to us in professions also. For example, I am a student of engineering or I am a student of law. I'll be obligated to continue doing that specific profession. अगर मैं उस प्रोफेशन से हट जाता हूं तो ये सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा, या मैं ये देखूंगा मैं कैसे वेस्ट कर रहा हूं, कैसे मैं लॉस में जा रहा हूं, rather than what I'll be gaining by changing the profession. If we have to combat this specific kind of a logical disease, we have to change our paradigm of thinking. Thank you so much.